Hello, welcome. Myself Deepmala Meena. In previous video, we have discussed about the transformation equation for position vector in rotating frame. In today's video, we will discuss about transformation of velocity. Okay. For this, we will take the previous equation in which we have r equals to I cap dash x dash plus j cap dash y dash plus k cap dash z dash. ओके, ये हमारे स्थिति का रूपांतरण समीकरण है. अब हमें इससे वेलोसिटी का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग अबोव इक्वेशन with respect to t. Okay, so what we write? dr upon dt equals to I cap dash dx dash upon dt plus j cap dash dy dash upon dt plus k cap dash dz dash upon dt. Now plus, as we are having that I cap dash, j cap dash, k cap dash are also time dependent, so we will use this x dash. We can write d I cap dash dt x dash plus d j cap dash dt y dash plus d k cap dash dt upon z dash. This is our equation 4. क्योंकि हमारे पास में ये दोनों टर्म्स टाइम डिपेंडेंट है, तो हमारे पास में दोनों का ही हम अवकलन करेंगे. नाउ एज वी आर हैविंग बोथ फ्रेम्स एस एंड आर एंड ऑल्सो द पोजिशन वैक्टर इन बोथ द फ्रेम्स, मीन्स वी कैन राइट द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ पार्टिकल इन बोथ द फ्रेम. सो वी नो दैट if v is the velocity of particle in frame S, then we can write v equals to dr upon dt equals to I cap dx upon dt plus j cap dy upon dt plus k cap dz upon dt. This is our equation 5. Similarly, the velocity v dash of particle in frame R, we can write this v dash equals to d dash r upon dt equals to I cap dash dx dash upon dt plus j cap dash dy dash upon dt plus k cap dash dz dash upon dt. This is our equation 6. Okay, now as we know that in equation 4 we are having these terms d I cap dash upon dt, d j cap dash upon dt, d k cap dash upon dt and I cap j k cap dash are the unit vectors. So to find out the value of d I cap dash upon dt, d j cap dash upon dt, d k cap dash upon dt. Okay, we take some assumptions. Let we take a unit vector r. Let we take a unit vector r. R is unit vector, means the resultant of the vector is 1, which is moving
with an angular velocity omega just like I cap dash, j cap dash and k cap dash. So therefore v equals to omega cross r, or we can write dr upon dt equals to omega cross r. ओके, हमने ये क्या अजम्पशन किया है, डी आई कैप डैश डी टी, जी के कैप डी टी और डी के कैप डैश डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर आर लेते हैं. ये सब भी यूनिट वेक्टर्स ही हैं, विच इज़ मूविंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो कि एक कोणीय वेग ओमेगा से उसी तरह घूर्णन कर रहा है जैसे कि ये तीनों हमारे पास में एकांक सदिश कर रहे हैं. तो हम जानते हैं रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर. हम यहाँ पे रेखीय वेग को v इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी से लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई कैप डैश, सब्सटीट्यूटिंग द आई कैप डैश, जे कैप डैश, के कैप डैश इन प्लेस ऑफ आर इन दिस इक्वेशन. मतलब आर की जगह पर हम यहाँ पर एक बार आई कैप डैश, एक बार जे कैप डैश और एक बार के कैप डैश रखेंगे. देखते हैं क्या होता है. सब्सटीट्यूटिंग I cap dash, J cap dash and K cap dash in place of R in above equation. So what we get? Okay, we get d I cap dash dt equals to omega cross I cap dash, d we will write here d j cap dash upon dt equals to omega cross j cap dash and d k cap dash upon dt यूनिट वेक्टर है. वी कैन राइट दिस डी आई डैश, डी जेड डैश और डी के डैश इक्वल्स ओमेगा क्रॉस के डैश. ओके, हियर वी आर टेकिंग यूनिट वेक्टर. सो डी आई डैश अपॉन डी टी ओमेगा क्रॉस आई डैश, डी जे डैश अपॉन डी टी ओमेगा क्रॉस जे डैश एंड डी के डैश अपॉन डी टी ओमेगा क्रॉस के डैश. सो पुटिंग दीज इक्वेशन एंड इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 4. ये देखिए, ये तीनों इक्वेशन और ये इक्वेशन 6, इसको हम इक्वेशन 4 में रखेंगे जो हमारे पास में डी आर अपॉन डी टी वाली इक्वेशन है. तो हमें क्या मिलता है, डी आर, लेट मी राइट दिस, पुटिंग अबोव इक्वेशंस एंड इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 4. ये देखिए, ये इक्वेशन 6 है, इसे हम 4 में रखेंगे. ठीक है, तो हमारे पास में क्या आता है, डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आई कैप डैश एक्स डैश. ठीक है, प्लस वाई डैश प्लस, ये हमारे पास में हमें इक्वेशन मिलती है. अब ये देखिए, ये टर्म हमारे पास में हम इसे आर लिखते आ रहे हैं और वी कैन री राइट दिस टर्म डी आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी डैश आर अपॉन डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर. Okay, clear? As we write before, this is the velocity of particle in frame as, this is the velocity of particle in frame as dash, means here we are taking frame r because of rotating frame, so we are not considering here s prime, we are taking here r, and this is omega cross r. So we can write this v
इक्वल्स टू वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर. ओके, और वी कैन रीराइट दिस वी डैश equals to v minus omega cross r. What is this? This is the transformation equation of the velocity of particle in frame r. Above equation is the transformation equation of the velocity of particle in reference frame R. ये हमारे पास में क्या है, कण के वेग का रूपांतरण समीकरण, घूर्णी निर्देश तंत्र. इससे पहले हमने कण के स्थिति का रूपांतरण समीकरण निकाला था, फिर उसके बाद में ये हमारे पास में कण के वेग का रूपांतरण समीकरण है. नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे कण के त्वरण का और बल का रूपांतरण समीकरण. एक बार हम इसको देख लेते हैं कि हमने जो वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, इसमें हमने क्या किया कि जो हमारे पास में स्थिति का रूपांतरण समीकरण जो है फ्रेम आर के लिए, वो हमारा क्या था, आर इक्वल्स टू आई डैश एक्स डैश प्लस जेड डैश वाई डैश प्लस के कैप डैश जेड डैश. हमें पता है यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश ये सब क्या है. तो उसके बाद में हमने हमारे पास में ये जो पोजीशन वेक्टर का है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है. सो वी विल डिफ्रेंशिएट अबव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो ये हमने डिफ्रेंशिएट किया. The change in the above expression is only this because the unit vectors in frame, rotating frame, we can say here this is rotating frame, are also time dependent. मतलब वो समय के साथ में जो एकांक सदिश हैं वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं. तो हमें पता है कि जब समय के साथ में पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो समय के सापेक्ष उनका अवकलन ज़रूर होगा. तो हम यहाँ पर ऊपर वाली टर्म से हमारे पास में इस तरह की नीचे की 3 टर्म बनती है. अब ये तो हमारे पास में फ्रेम आर में एक वेलोसिटी पार्टिकल की, ये हमारे पास में फ्रेम, ये तो फ्रेम एस में है, ये फ्रेम आर में. लेकिन ये जो टर्म है इसमें हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स है, डी आई कैप डैश अपॉन डी टी, डी जे कैप डैश अपॉन डी टी, डी के कैप डैश अपॉन डी टी. तो हमें इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. उसके लिए हमने एक अजम्पशन क्या किया, हमने एक यूनिट वेक्टर ले लिया आर. मतलब जो यूनिट वेक्टर से मीन्स यूनिट जो वैल्यू हमारे पास रखता है, ठीक है, वो उसी तरह से घूर्णन गति कर रहा है जिस तरह से कि ये आई कैप डैश जे कैप डैश और के कैप डैश कर रहे हैं. मतलब हमने सिमिलरली ले लिया बिल्कुल आर को. तो हम जानते हैं वी रेखीय वेग है और ये कोणीय वेग है, तो इन दोनों में जो संबंध होता है वो होता है वी इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर. इसी संबंध को हमने आगे यूज़ करते हुए वी को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया है, डी आर अपॉन डी टी. अब यहाँ पर हम सिर्फ इस आर को आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश से रिप्लेस करेंगे. रिप्लेस करते हमारे पास में तीनों टर्म्स की वैल्यू आ गई और वैल्यूज़ पुट करने के बाद में हम ये हमारे पास में वेग का रूपांतरण समीकरण को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम कोरियोलिस फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.